Yeah, very good afternoon, Aditya sir. Actually, good afternoon. Let's wait for 5 more minutes. I think more people to Yeah, join. sure. Actually, sir has Okay, joined I and think we'll be reconnecting again. Yeah, no yeah, issue. Shivam has also joined. In the meantime, the Shivam, participants are joining. So we'll start in the yeah, next yeah, 5 minutes. yeah. Well, good afternoon to all the participants present here. Welcome you in the next session under IIC MIT Meerut. Well, a very good afternoon once again to all the participants present here. All the participants are requested to open their cam if possible. All the participants requested to be on the mute state. Some important points to be noted that in the end, a feedback form will be shared and your attendance log will be verified. Then only the e-certificates will be sent. Now, without any delay, first of all, I would like to give you a brief about this webinar. Then Aditya Nair sir will welcome the keynote speaker, Shivam Gupta sir, his motivational story of entrepreneurship, innovator, Merit Institute of Technology, Merit. Welcome you all in the webinar scheduled today. Aditya, is my voice audible? Voice is audible. Okay, okay, sir. So MIT ISC welcome all the participants for the webinar on My Story Motivational Session by Successful Innovators. And we have an esteemed speaker today, Shivam Gupta sir, who will be highlighting his journey, that how he grew in this domain. And I'm thankful to NASCOM for providing this keynote speaker for enlightening us in this session. Now I request Aditya Nair sir, representative from NASCOM, to give some key highlights about the speaker. Hi everyone. Are you guys comfortable in Hindi or English? So you can use mix, Hindi and English, Mix. both. Yeah, yeah, Or we can go just in Hindi. I think yeah, no issue. Rashtra है हमारी. Yeah. We should be talking in Hindi. No issues. So Okay, Samar request English only, please. English only, please. Okay. No, no Thank you. issue. You So can go in my both the name mode. No. No. is my voice audible? Yeah, yeah, question very audible, sir. Okay, fine. So, my name is Aditya Nair. So, I am from NASCOM. So, you guys might be aware of like what NASCOM is. If someone don't know, please let me know here only. I'll give a brief about NASCOM, like what we do. Okay, no one. Sir, actually, Thank you so majority of much. the people are from different NASCOM. domains, so you can give a brief introduction about Okay. NASCOM also. It will be beneficial for them So, also. so okay, great. So NASCOM is the IT of pan India. So we are into various sectors, like we're into policy, we are into skill development, we are into employment, we are into data security and cyber security. We have like 7 to 8 departments in the organization. So we are in like in 5 regions in the whole India. So we have 5 offices. So we have around like 400 people working with NASCOM right now. So I'm working with the skill development sector. So I just handling government and the private colleges and universities. So today we all are gathered here to So I too want to hear this story from Shivam. So Shivam Gupta, who is the CEO of House Technology. So he deals with the drone technology and about the drone. Am I right, Shivam? Yeah, great. So Yes, sir. Yes. I think Shivam is the right person who will be, and I want to thank MIT and MIT for this, for the providing this platform to us. So over to Shivam Gupta, who will be, presenting his like a story. So I too want to listen. Please, if you have any questions, you can ask at the last. Okay, guys. Thank you. Hello, everyone. So I am Shivam Gupta. I completed my BTech from DTU in 2022 from Mathematics and Computing discipline. Actually, uh, giving you a brief about how I started it. I started my this entrepreneurship journey in my second semester because we have, I guess, a little bit of time. So I will start it from my second semester. Uh, uh, like uh, so in my second semester, I started an app which is named as House. So you can also like check it on Google Play Store. So I learned everything from the scratch, like uh, how we develop our application for the front end part, the back end part. We took help of our seniors also, and I made an application. The primary purpose of that application is to list all the events which are happening into our college. Yes, this was the primary purpose of the application, is to just list all the applications
all the events which are happening in our college into a single platform, so that everyone can check it. And in my third semester, I tried to uh, I tried for the someone is having any question, or you can ask it later, because I'll just Guys, we The can, platform will sure. be open in the Guys, end. Yeah. yeah. So guys, we'll have a question at the last of the session, you know. So In case of any please. अभी तो कुछ queries, you बताया can नहीं write मैंने. the question in the chat box. We will take all the questions. So he have just started. How you can have? अभी तो आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए वैसे तो. लेकिन चलिए. Okay, sir, तो Shivam, carry on. जी जी जी, तो इन माय थर्ड सेमेस्टर मैंने थोड़ी मार्केटिंग पे ट्राई किया. And in that semester, I learned that how marketing works. And because हमारा जो background है, like in my 11th and 12th, I primarily focused on the technology. And after that, I came to DTU. I focused more on the technology part. So somehow, in my journey, I lose that marketing part. So in my third semester, I came to know that how much important marketing is, how to take our product into the market so that everyone can understand it. And as far as I know, in my fourth semester, everything completely shut down हो गया था पूरे इंडिया में. COVID-19 पूरा spread हो गया था. So then I rose up in my, I guess in my third year in my seventh semester or sixth semester. Then I came back with a new idea, because I was looking more into the AR VR part, like how I can do something with the 3D modeling. क्योंकि मेरा मन भर गया था फिर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से. देन आई लुक्ड इनटू मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री 4.0 वाज वेरी on very initial stages, so everyone was looking on it. टेक्नोलॉजीज नई नई आई थी, जैसे आज के टाइम में चैट जीपीटी है. सो वी वर फोकसिंग मोर ऑन दैट. तो हमारे कॉलेजेस के अंदर सोसाइटीज हैं, जैसे आपके कॉलेजेस में होंगी. तो फिर हमने उस सोसाइटी को ज्वाइन किया. अलग अलग 3-4 सोसाइटीज को एक साथ हमने ज्वाइन किया, देखा. Then we took some learnings. Then we came to our home. We completely developed the application, and somehow we moved into the drone sector. We have a society named UAS, Unmanned Aerial Systems. I have some friends in that. So I took the help of my friends. I asked from like my seniors, like, can I have someone from another college, because I was a little weak in the hardware part, because मेरी जो education है वो mathematics and computing है, as I have mentioned. So I was more proficient in the software part. So the thing is, I learned about the hardware part in my journey, but at that time I was a little bit confused, like how should we proceed with the hardware stuff. So I met Dilshad, who is my co-founder. He's from Okla. So this is how we started everything. And in my fourth year, I guess in seventh or eighth semester, I started my proprietorship, because we started getting orders from the army clients. Initially हमारे जो army के clients थे, वो कुछ हमारे parents थे. I guess you are having any question, Aditya? Yes, Shivam. I just want to know, and out of curiosity, like ये Yes, idea yes. आया कैसे, कैसे पूरा Like जनरेट हुआ माहौल आपको, मतलब स्टार्टअप करने का. drones. मतलब Okay, okay. okay, so Actually, मतलब हमारे कॉलेज के अंदर ही थोड़ा सा मतलब हमारे टीचर्स ने हमें काफी पुश किया था. आई रिमेम्बर अ सिनेरियो इन व्हिच आई वाज इन माय, आई गेस, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर. वी हैव अ टीचर नेम, like he's the chemistry teacher. So he asked from all of the class कि किसको जॉब के अलावा कुछ करना है. He was like more interested कि जॉब के अलावा कुछ भी, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे हायर स्टडीज में जाएं. तो मेरे को याद है पूरी क्लास में फिर मैंने हाथ उठाया था. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम क्या करोगे. तो मैंने कहा सर अभी तो पता नहीं, मतलब कुछ अलग करेंगे. तो उस टाइम मेरे को याद है पूरी पूरी क्लास हंस रही थी, जो कि काफी नॉर्मल है, मतलब एक बिल्कुल ब्लंट रहना और फिर बोलना कि कुछ करेंगे. तो उस टाइम सर ने, मतलब काफी सही था, उन्होंने बोला था, कह रहे थे कि अभी ये तुम पे हंस रहे हैं, जब तुम कुछ कर लोगे तो फिर ये तुम्हें देखना आगे अप्रिशिएट करेंगे. और वो शिवम, बात सही मतलब भी रही. हाँ. कितना संघर्ष लगा आपको.
मतलब यहाँ तक पहुंचने में, वो मतलब वो भी एक क्वेश्चन। हाँ, वो मैं राइट। अभी बताता मतलब हूँ। जैसे अभी मैं 7th सेमेस्टर तक तो आ ही गया था, धीरे धीरे खिसक खिसक के। तो 7th सेमेस्टर में ठीक है, आर्मी के हमने क्लाइंट्स लिए इनिशियली। लाइक जब आप कॉलेज में रहते हैं तो इतना हार्ड वर्क लगता नहीं है, क्योंकि मतलब दिन में थोड़ा अगर मेहनत भी रहती है तो रात को फिर दोस्त रहते हैं। जब तक आसपास दोस्त रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं रहती। आदमी जब अकेला होता है तब थोड़ा ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो हार्ड वर्क तो मतलब ठीक है, मतलब हमारे को आदत पड़ जाती है। 11th 12th में भी हमने इनफ मेहनत करते हैं जेई मेंस के लिए, फिर वहां भी अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, कॉलेज में आते हैं अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। तो धीरे धीरे वो पार्ट ऑफ द लाइफ हमारा बन जाता है। तो मतलब हार्ड वर्क को हम ऐसे हार्ड वर्क लेते भी नहीं है। दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर लें, सब नॉर्मल हो जाता है। मेन हमारा ये रहता है कि इनिशियल क्लाइंट्स जैसे हमको लाने में बहुत मुश्किल हुई थी, बिकॉज इट वाज रियली डिफिकल्ट टू मतलब हमारा जो ट्रस्ट होता है ना, वो लोगों से बनाना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वी आर मीटिंग विद समवन फ्रॉम द आर्मी हु इज हैविंग अ पोस्ट ऑफ कैप्टन और मेजर, एंड ही इज आस्किंग अबाउट अस कि भाई आप क्या बना रहे हो। फिर हमने कहा सर हम ड्रोन बनाते हैं। उस टाइम इतना शार्पली भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने आप को, क्योंकि हमने कहा सर हम ड्रोन बना रहे हैं। अब ड्रोन के अंदर क्या बना रहे हैं, उड़ता हुआ पंछी थोड़ी बना रहे हैं। तो वो बातों का फेर होता है। फिर धीरे धीरे हम कम्युनिकेशन सीखते हैं। फिर हम ये सीखते हैं कि सामने किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, किस टोन में बात करनी है। आज तो काफी कुछ हो गया है। तो फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के पेरेंट्स आर्मी में थे, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया। सोसाइटीज थी, प्रोफेसर्स थे। फिर थोड़ी किस्मत ने भी साथ दे ही दिया। ऐसे सब कुछ अपने ऊपर लेना भी ठीक नहीं है। तो फिर हम मतलब वही 7th 8th सेमेस्टर में, बिकॉज इट वाज लाइक मैंडेटरी फॉर अस टू हैव अ जीएसटी नंबर इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू सेल इट इन द आर्मी। तो इनिशियली हमने डेमो और ये सब करा के थोड़ा बहुत आउट ऑफ द काइंड ही सप्लाई कर दिया, बिकॉज वी आर हैविंग सम लाइक हमारे जो फंड्स थे वो कॉलेज हमको दे देता था। तो सोसाइटी के फंड्स यूज करके हमने उसी को प्रोडक्ट को डेवलप किया। लास्ट में हमने उसको करा। फिर सियाना और नासकॉम का कोहू की अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई। फिर उसमें 6 महीने का एक स्ट्रगल था, जिसमें हमने काफी बड़ा एक पहला क्लाइंट था जिसको ब्रेक किया, जो हमारा प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट क्लाइंट था, बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जो हमने ब्रेक किया। तो मतलब मेन इशू तो यही रहता है कि जनरली परसिवरेंस का ही होता है, क्योंकि इनिशियली मेरे काफी सारे दोस्त थे, लेकिन सेकंड ईयर में एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। हम भी तुम्हारे साथ, हम भी तुम्हारे साथ। हमने बैठ के डिपार्टमेंट्स बांट लिए कि हाँ ये जो है सीएफओ बनेगा कंपनी का, ये सीईओ बनेगा, ये मार्केटिंग देखेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट। उस टाइम हमारे पास किसी के पास स्किल तो थी नहीं, तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे सबके डिपार्टमेंट बांट दिए। लास्ट में फिर धीरे धीरे सबके इंटर्नशिप्स आए। सबको थोड़ा सा इजी मनी रहता है, मतलब जॉब के अंदर इजी मनी तो नहीं, थोड़ा सा मतलब वो लगता है, लुब्रिकेटिंग लगता है कि इनिशियली बड़ा मजा आ रहा है पैसों में। फिर कहीं ना कहीं सबके एक चॉइसेस होते हैं, तो सबने कुछ कुछ लोग चले गए अपना जॉब के अंदर, कुछ साथ में आज भी। लेकिन मन से तो सब साथ में ही है। सबका कहीं ना कहीं मन है कि 3 4 साल जॉब करने के बाद स्टार्टअप में आएंगे। अब देखते हैं कि 3 4 साल कब पूरे होते हैं सबके। तो ऐसे करके हमने इनिशियली काफी टीम टूटते हुए देखी। थोड़ा दिक्कत होती है जब टीम टूटती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज एक टाइम के बाद हमारा ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं फील्ड में हूँ, मैं ड्रोन्स किसी को दिखा रहा हूँ आर्मी वाले को, तो मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि जो दिलशाद है ही इज एट द ऑफिस। तो कोई भी इशू आता है, कुछ होता है, तो दिलशाद संभाल लेगा। तो इस चीजों को लेकर हम थोड़ा स्ट्रगल तो करते ही हैं समय के साथ, जब टीम इनिशियली ब्रेक होती है। बाद में ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, सीख जाते हैं सब। थोड़ा बहुत पेन बियर करना आ जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हम 8th सेमेस्टर तक पहुंचे। हमने जैसे तैसे कॉलेज अपना निपटाया। फिर अब हम नासकॉम के उसमें कोहोर्ट 2 के उसमें हमारा एक अपॉर्चुनिटी थी, जो आई गेस 22 में हुआ था, 22 अगस्त में। 22 अगस्त से मार्च 2023 तक पूरा कोहोर्ट चला था। तो उसके अंदर हमारा मतलब बेसिक था, एप्लीकेशंस हुए, फिर उसके बाद मेंटोरशिप सेशंस बढ़े। फिर मेंटोरशिप सेशंस के अंदर इनिशियली हमारा आइडिया थोड़ा ज्यादा लगता, लाइक वी वर ऑन द स्काई, कि हम उस स्टार्टिंग से स्क्रैच से डेवलप कर लेंगे। हमें उस टाइम इतना फंड्स को किस तरीके से अटैच करते हैं मार्केट के साथ, उसका इतना आइडिया नहीं था। तो नासकॉम फाउंडेशन ने उसमें काफी हमारी मतलब हेल्प करी। मेंटोरशिप सेशंस हुए, हमारे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड आते थे उसमें, तो उनके साथ बातचीत हुई।
तो उस टाइम हमारे यहाँ इनिशियली सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि जब हम डिफेंस के अंदर पिच करते हैं किसी, हम इन्वेस्टर को भी पिच करते हैं कि दैट वी विल सेल इट आवर प्रोडक्ट इनटू द डिफेंस और गवर्नमेंट और एनीथिंग, मतलब गवर्नमेंट, डिफेंस या कॉर्पोरेट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं, कि मतलब इतनी इनिशियल स्टेज पे जब हमारा स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट काफी इनिशियल स्टेजेस में है, जस्ट एमवीपी होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, सिर्फ उसी कहीं स्टेज में लाया कर रहा है, तो हम गवर्नमेंट में कैसे सेल करेंगे? तो ये इश्यूज तो हमारे में भी रहता ही है। देखिए हम पीपीटी के अंदर तो बोल ही देते हैं कि नहीं हम बेच देंगे, बैक ऑफ द माइंड में तो हमें पता होता है कि बेचना मुश्किल है, वो तो बोलने के लिए कॉन्फिडेंटली बोल दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, वो तो रात को फिर हमें पता है कि हम सोच रहे हैं कि यार बोल तो दिया, पीपीटी में बेचेंगे कैसे? तो हम भी फिर ये सोच रहे थे, तो आर्मी के मतलब हम सिलीगुड़ी में प्राइमरीली इसको सप्लाई करते थे अपने ड्रोन्स को, इंडियन आर्मी को। तो फिर वहीं से कहीं ना कहीं हमने उनसे पूछा, क्योंकि उनका टर्न अराउंड रेट बहुत कम है। टर्न अराउंड रेट अगर मैं उसको एग्जांपल दूं तो इट इज बेसिकली कि आपके क्लाइंट ने आपसे एक प्रोडक्ट लिया, फिर वापस वो कितने टाइम बाद आ रहा है आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने एक सोप लिया उसको मार्केट से, तो वो 3 महीने बाद कंज्यूम हो जाता है, 3 या 2 महीने में, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कौन कितना नहाता है, तो गर्मी में ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर हम वापस जाके उससे खरीदेंगे। तो इट इज मतलब ये टर्न अराउंड रेट होता है कि हाउ वी आर फ्रीक्वेंट विद आवर क्लाइंट और वेंडर। तो गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत स्लो होता है, मतलब मिनिमम 6 महीने और 1 साल का होता है ये। तो इस तरीके से सस्टेनेबल बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें तो कैश फ्लो चाहिए ही होता है ज्यादा। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका था कि क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट शिफ्ट करना तो बहुत मुश्किल हो गया था एकदम, कि डिफेंस के बाद एकदम कॉर्पोरेट या सिविलियन में जाएं। और हमने डिफेंस के अंदर इतना मार्केट बना लिया था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से बन चुकी थी कि अब कॉर्पोरेट्स और उसमें तो जा ही नहीं सकते हैं, सिविलियंस में, और वो मार्केट थोड़ी डिफिकल्ट भी है। तो मैंने बहुत मतलब बेसिक तरीका अपनाया जो सुनने में बड़ा हिलेरियस लगेगा सबको। मैंने आंध्र प्रदेश के जितने भी आईपीएस और आईएएस हैं उन सबके वेबसाइट से उनके नंबर निकाले। एक होती है वेब स्क्रैपिंग, इफ एनीवन इज अवेयर अबाउट इट। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है उसको रीड करते हैं और उसमें से हम एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम मतलब मेरा ब्रांच ही सॉफ्टवेयर का है और ये सब टेक्निक्स हमने कर रखी है। तो हमने सॉफ्टवेयर ये सब नंबर निकाले, उन सबको कॉल में व्हाट्सएप मैसेज किया, काफी सिंपल व्हाट्सएप मैसेज, आई एम शिवम गुप्ता, गुड मॉर्निंग सर, आई एम शिवम गुप्ता, आई डील इन दिस एंड दिस एंड वी हैव ड्रोन्स, इफ यू कैन प्रोवाइड अस सम ऑफ योर टाइम वी विल शो यू। ऐसे करके था एक चैट जीपीटी से हमने बढ़िया सा मैसेज बनवा लिया, सब इंग्लिश हिंदी एक्यूरेट करके। फिर वहां से तो किसी का रिप्लाई आया नहीं। फिर एक गोंदिया पुलिस करके है महाराष्ट्र के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, फिर वहां पे एसपी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा ही। अब उसमें मैंने सबको भेजा, गोंदिया पुलिस की आप वेबसाइट खोलेंगे उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, आईपीएस से लेकर इंस्पेक्टर तक सब उसका है। तो जो भी नंबर थे मैंने उन सब पे किया। तो उसमें लकीली, अब इसमें भी थोड़ा सा लक है ही, कि वहां पे सीधा एसपी का ही मैसेज आ गया कि मंडे को आ जाओ आप ड्रोन लेकर। तो फिर ऐसे हमने पूरे चीज को इनिशिएट किया। अब ये बात है दिसंबर 2022 की, जब कहीं ना कहीं हम पे सियाना नास्कॉम का भी बहुत प्रेशर था कि आप बेचो कुछ प्रोडक्ट बेचो, कुछ पीओसी करके दिखाओ, जो कि प्रेशर भी नहीं था, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सही सही चीज भी थी, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कराते तो वो प्रोडक्ट रखने का कोई फायदा है भी नहीं। तो थोड़ा सा इनिशियली ये पेनफुल रहता है, लेकिन लास्ट में फ्रूटफुल होता है। तो इस तरीके से हमने दिसंबर 2022 में वो एसपी को बेसिकली वो किया, एक तरीके से कह सकते हैं ब्रेक। फिर हमने फ्रीक्वेंटली 3-4 बार वहां पे चक्कर लगाए गोंदिया में। फिर हमने उनके पूरे इनसाइट्स लिए, सब हमको पता लगा कि कैसे काम करते हैं, कैसे नक्सलाइट और ये सब मूवमेंट्स हो रही हैं। फिर ड्रोन्स उनको किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, कितने साइज के, वेट के, फंड्स किस तरीके से एलोकेट होते हैं गवर्नमेंट में। अब उस टाइम भी हमारी एक थोड़ी सी किस्मत और आप कह सकते हैं बढ़िया थी, कि क्योंकि वहां पे जो एसपी आए थे वो नए नए आए थे, अक्टूबर 2022 के अंदर उनका वहां पे ट्रांसफर हुआ था। अभी भी है वो वहां पे, आईपीएस निखिल पिंगले नाम है उनका। तो उस टाइम उनका वहां पे ट्रांसफर हुआ था, और उनको उनके पास फंड्स होते हैं, उनको थोड़े खर्च भी करने होते हैं। तो उन्होंने हमसे फिर फरवरी के आसपास उन्होंने टेंडर उसको पास कर दिया। तो हम तो एकदम खुश हो गए कि चलो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया काम हो गया। और फिर मार्च के अंदर हमारा सियाना का हुआ, तो हम वो जीत गए फिर कोहोर्ट। अब इतना तो मेहनत कर ही ली थी, तो फिर
थोड़ा सा ऑब्वियस भी हो गया था कि जीत जाएंगे, तो हो गए, हम जीत गए। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा एक क्लाइंट जो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट और सीधा कोल्ड कॉलिंग के थ्रू हमने ब्रेक किया। अब जब मैं वहां पे था तो वहां पे फॉरेस्ट, मतलब गोंदिया जो है डिस्ट्रिक्ट 52% फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो जनरली जहाँ पे इतना फॉरेस्ट होता है वहाँ पे एक फॉरेस्ट इंचार्ज भी होता है, जिनको IFS कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। तो उसमें मैंने उनकी वेबसाइट से, मतलब मैंने प्योर कोल्ड कॉलिंग करी है, मैंने ज्यादा कोई रेफरेंस और ये सब करा ही नहीं, क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट में पेनिट्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट बिठाने पड़ते हैं। तो इतना मुश्किल था नहीं, मतलब हमारे केसेस में थोड़ा तो बिठाने पड़ते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके प्रोडक्ट में अच्छी खासी वैल्यू है तो वो ले लेंगे प्रोडक्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमने फॉरेस्ट ऑफिसर के जो वेबसाइट थी उससे नंबर निकाल के उनको वो मेल निकाल के उनको मैंने एक मेल लिखी, वो एक कोल्ड मेल, चैट GPT से वेरीफाई करवा के सब कुछ, यहाँ सब कुछ सब सेटल्ड है कि हमने सर SP साहब को भी ड्रोन दिया है और ऐसे ऐसे हम आर्मी में देते हैं, थोड़े बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लगा के और सप्लाई कर दिया। अब उस टाइम भी ये था कि मैं गोंदिया में उनको पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा था जब हमने ड्रोन सप्लाई कर दिया। तो वहीं मेरे पास वही IFS के PA की कॉल आ गई कि आप गोंदिया में ड्रोन अपना दिखा सकते हैं, आप मिलने आ सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर, हम तो यहीं हैं। तो फिर मंडे को फिर सैटरडे को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, संडे को उनका कॉल आ गया, मंडे को मैं IFS से मिलने चला गया। फिर मेरे को IFS के इनपुट्स मिल गए कि उनको क्या इश्यूज हैं, उनका किस तरीके से सिस्टम इशू में है, वहाँ पे एलिफेंट्स का थोड़ा सा इशू है उनके हिसाब से, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब हमारे इतने कॉन्टेक्ट्स बन गए तो हमारे पास, मतलब गोंदिया के अंदर इनफ हमारी वो थी, मतलब हमारे को खासा दिक्कत थी नहीं। को भी जानते हैं, IFS को भी जानते हैं, वो भी दोनों बढ़िया आदमी, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जब भी बोलो तो मीटिंग के लिए अवेलेबल रहते थे। तो इसी में फिर हमने क्लाइंट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो हमने इस अपॉर्चुनिटी का भी बहुत बढ़िया फायदा उठाया कि मतलब हमारी वो डील जो चली थी गोंदिया पुलिस के साथ समवेयर अराउंड 6 महीने की चली थी, जिसमें हमने डेमो दिखाए, फिर टेंडर पास हुए, फिर प्रोडक्ट दिया, फिर ट्रेनिंग हुई। तो ये सब प्रोसीजर के अंदर टाइम लगता है। तो अराउंड 6 से 7 महीने हमको लगे उसको डील को पूरा करने में, जो फरवरी में स्टार्ट हुई थी और समवेयर अराउंड जुलाई में पूरी हुई है, जुलाई 2023। फिर ये सब डील हुई, फिर हमको IFS का पता लगा, फिर वहीं से हमारे थोड़े कनेक्शंस बैठ गए, क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत भी आ जाती है जब क्या एक IPS वगैरह से बात हो जाए ना, तो आदमी फिर थोड़ा सा उसमें नॉर्मल हो जाता है कि अब आगे बात करनी है किससे। तो फिर उसी से जस्ट लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं बालाघाट और राजनांदगांव, जो एक छत्तीसगढ़ में फॉल करता है, एक मध्य प्रदेश में। तो फिर हम वहां पे भी चले गए सीधा डायरेक्ट, वहीं से 2-3 घंटे की बसेस हैं। मैं अपना एक टाइम फ्री करके गोंदिया से वहां चला गया एक दिन के लिए, वहां पे भी IPS है, उनसे मिलकर आ गया। IPS थे, मतलब वहां पे एक SP थे और एक SSP थे, दोनों से मिलकर आ गए राजनांदगांव में। और उस टाइम एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट ब्रेक हुआ था 2-3 सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो उस टाइम थोड़ी सी वहाँ पे आधार कार्ड के अंदर नंबर चेंज कराने की एप्लीकेशंस काफी ज्यादा थी, क्योंकि एड्रेसेस और पिन कोड काफी चेंज हुए थे, तो इतना एंटरटेन कर नहीं रहे थे हमको, मतलब आउटसाइड वेंडर को। लेकिन वहां से फिर वहां पे हम IFS से मिलकर आए, तो हमें क्लाइंट्स के काफी इंसाइट्स मिल गए इसी बहाने। तो आज के टाइम में जो हमारे पास नॉलेज है वो वेरीफाइड है। तो मतलब कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप में जाए तो जो हमने गलती करी थी हम ये थे कि हम यहाँ बैठ के रिसर्च कर रहे थे गूगल पे या फिर चैट GPT पे किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट होती है जो हम नेट पे देखते हैं। नेट पे कहीं ना कहीं चीजों को इन्फ्लेट किया जाता है या फिर आधे फैक्ट्स को हाइड किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ही करा जाता है, वो ऐसे किसी की इंटेंशन नहीं है कि गलत बताने की। तो ये सारी जो चीजें हैं इन सब के लिए हमारा था कि हम जाके उनसे ऑन ग्राउंड मिलकर आए। तो हमने 1-2 महीना लमसम स्पेंड करा, अच्छा खासा पैसा लगाया हमने और सब क्लाइंट से मिलकर आए। तो फिर उसके बाद हमने इनसाइट्स लिए। अब 23 तो हो ही गया था जुलाई का, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत हमारे जो फंड डिस्पर्स हुए थे, फिर इंक्यूबेशन हुई हमारी। फिर उसके बाद एक कंपटीशन था विमर्श 2023 का था, अभी नवंबर में था, अभी ये इस मार्च में क्लियर हुआ है। तो उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब यूनियन होम सेक्रेटरी से मिलने की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गए थे। वो उस कॉम्पिटिशन्स के अंदर यही था कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है हमारी LEAs, तो वो किस तरीके से ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर AI एम्बेड कर सकते हैं और रियल टाइम ट्रैकिंग उससे हो सकती है। तो वो 3-4 डिपार्टमेंट्स थे उसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, और एक और था कोई, क्या था, पता नहीं DOT था क्या था।
तो ऐसे 3-4 डिपार्टमेंट थे, तो उनका हमने कंपटीशन जीता। तो अभी हम 14 मार्च को ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यूनियन होम सेक्रेटरी से मिलकर आए। वहाँ पे I4C है, एक इंडियन साइबर सेल कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके सीईओ हैं राजेश कुमार, उनसे हम मिलकर आए। तो उन्होंने हमको इंसाइट्स दिए कि पुलिस को किस तरीके से आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कितना फंड एलोकेट करने का प्लान कर रही है। तो ये सब जो इंसाइट्स हैं हमें गवर्नमेंट के, मतलब उनके साथ बैठने से ही पता लगे। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। ये तो मैंने आपको अप ही बता दिया कि हमने ब्रेक किया और ब्रेक हो गए, ब्रेक किया और ब्रेक हो गए। बीच बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जब हम ब्रेक करते हैं, जब हम जैसे राजनांदगांव गए, वहां पे नहीं हुआ ब्रेक। पहले हमने आंध्र प्रदेश के आईपीएस को मैसेज किया, नहीं बात बनी। तो बस वो तो ये थी कि परसिवरेंस थी हमारी, थोड़ा सा हमारे अपने ऊपर भी था कि नहीं अब करना तो है ही। तो फिर हमने दूसरी जगह पे अप्लाई किया, वहां भी नहीं होता, हो सकता है हम कहीं और अप्लाई कर रहे होते, हो सकता है एंटी नक्सल फोर्सेस पूरे में ही नहीं होता तो हम सिविलियन फोर्सेस में जा रहे होते। तो हमने मतलब अपनी डोमेन फिक्स करके कि हमें ड्रोन्स के अंदर ही उसको सप्लाई करना है। देन वी मूव्ड आवरसेल्फ इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर भी है तो उसके लिए क्या क्या इनसाइट्स हमारे रहेंगे। तो मतलब हमारा ये एक रहता था कि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, कोई भी ऑफिसर से, हमें पता होता है कि हमें इससे मिलना है, तो हम उनकी एक बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि उनका यूपीएससी कब क्लियर हुआ, उनकी फॉर्मल एजुकेशन किस में हुई हुई है, वो पुराने जिस एरिया के डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे या फिर आईएफएस थे, उन्होंने वहां पे कैसे कैसे डेवलपमेंट्स करे हैं। तो हमें एक अप्रोच पता लगती है उनकी कि वो उनका माइंडसेट कैसा है और वो किन किन चीजों के ऊपर प्राइमरली फोकस करते हैं। तो ये एक हमारी रिसर्च रहती है और इस तरीके से हो जाती हैं चीजें। थोड़ी थोड़ी नहीं भी होती हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा दुख तो है नहीं। तो ये मेरा अभी तक पूरा मतलब पाथ रहा है, जिसके अंदर हमने काफी लोगों के सपोर्ट हमको मिले हैं, नासकॉम के, सियाना के, हमारे कॉलेज के, हमारे प्रोफेसर्स के, दोस्तों के। आज भी जैसे हमने डील क्रैक करनी होती है तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कभी कभी कम पड़ जाता है। तो जो मेरे दोस्त आज जॉब कर रहे हैं, जिनकी कभी इंटेंशन हुआ करती थी कि हाँ स्टार्टअप करेंगे, और अभी भी है कि मतलब मन में तो रहता ही है कि स्टार्टअप करेंगे, तो वो उनसे मैं फंड्स मांगता हूँ तो वो दे देते हैं मेरे को, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब यही है, लास्ट में तो लोग ही काम आते हैं। ये ऑर्डर और ये सब तो चलते ही रहते हैं, आज है कल नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मैंने ऐसा तो नहीं, मैंने अपनी बातों में सारे आंसर्स दे दिए हैं कि सब एकदम सॉर्टेड सुनाई दे रहा था। मेरे तो क्वेश्चन है दो चार, मतलब लाइक आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया में कहीं अप्लाई किया था कि नहीं किया था उसमें, कि इंक्यूबेशन में किया था कहीं से? इंक्यूबेशंस में हमने किए हैं, मतलब ग्रांट्स तो अब जैसे हमको अवेलेबल हैं, क्या हमने प्रोसेस रहता है उसका, क्या क्या चाहिए रहता है? देखिए, जब आप कंपनी क्वेश्चन रजिस्टर सर। करते हैं, लाइक वी रजिस्टर्ड आवर कंपनी ऑन 21st of April 2023। अभी हमारी कंपनी का 1 साल होने वाला है 21st अप्रैल को। तो आफ्टर दैट वी अप्लाइड इट इनटू द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। तो उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, उसको अप्लाई करना होता है। एक पिच डेक होता है, लाइक हम अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि हम किस पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो वो सारे आइडियाज हमारे कहीं ना कहीं, वही जब हमने अप्लाई किया था तो उससे जस्ट पहले हमारा नासकॉम हुआ ही था, तो फिर हमने वही पिच डेक उसमें डाल दी थी, तो हमारा डीपीआईटी सर्टिफिकेट भी हो जाता है। डीपीआईटी सर्टिफिकेट इज द ओनली सर्टिफिकेट व्हिच लाइक अश्योर्स कि आप स्टार्टअप है। उसके बाद हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री इंक्यूबेशन मिल गई थी, क्योंकि हमने इस नासकॉम का फंड लिया था, तो उनका हमारे कॉलेज के साथ एग्रीमेंट था। उसके जस्ट बाद हमने मतलब ट्रिपल आईटी दिल्ली है, उसकी इंक्यूबेशन क्रैक कर ली। फिर आईआईटी मंडी से एक डीएसटी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक फंड होता है निधि प्रयास करके। तो निधि प्रयास अभी हमको अवेल हुआ है अराउंड 15 जनवरी के आसपास। फिर एक एचडीएफसी का परिवर्तन ग्रांट होता है, वो वैसे सीएसआर ग्रांट होता है, तो वो भी अभी हमें आधे एक महीने पहले ही मिला है। उससे क्या नाम है, एनएसयूटी से, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जी जी, मुझे लग रहा है गलती से माइक ऑन हो गया। हेलो, Yeah. प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। Sir, actually, sir has explained everything in a very simple way, so I don't think so that majority of them will be having any questions. He explained everything in a very simple language which even a common man can understand. And he beautifully described everything, that what is his journey. He touched each and every point where he put the effort, mainly.
अभी अभी सर 2 साल ही हुए हैं हमको, तो हमारा सब फ्रेश है दिमाग में। But it's not a matter of 2 years or what. At such a small tenure of life, you have achieved something valuable, which will help us Yes. to promote the mission of our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that जी, जी। Startup India and everything mission. It will be a blessing to the other people, youngsters also, that will motivate other people in the session, and we will be sharing this recording on the YouTube channel also, so that they will listen to your story and will definitely gain some insights from this, and that will Yeah, sure, definitely sir. help them to grow up in today's era. And I think, I think either no more questions are there. yeah, I think so. I think if we Yeah, need to start participants and are start up. requested to please fill the feedback form so that your certificate will be shared in the next 4 to 5 working days. I think if we need, Ayushi, if we need to start and start up, we have to, go to Shivam for everything. He will Yeah, let us sure, know, sir. right? We will be in touch. In future also, we will be conducting some series also. So we will be inviting him again to derive some experiences from him. That will definitely benefit us. Sure, sir, It will sure. depend, like, Yeah. Yeah. anything else, Ayushi? No, no, sir. Well, on behalf of MIT, I would like to express my bunch of thanks to our esteemed speaker, Mr. Shivam Gupta, sir, for sparing his valuable time and giving some insights that how one can plan a startup and grow as per the current scenario going on. He has beautifully explained everything, and the participants also will definitely gain some insights that will help them in the future. Last but not the least, I would like to thank NASCOM for providing this valuable support from their end, arranging the keynote speaker for today's session. Thanks to Ayatya sir from NASCOM, who's always ready to help us to motivate the youngsters to grow in the field of entrepreneurship, leadership, management, and many more. Thank you, Ayatya sir, once again. Thank you, Shyam Thank you, sir. Ayushi. And in future also, we will connect Thank you, with Shivam. you for some sessions and all. Yeah. Thank you, participants. For joining the session, you are the only factor due to which we are continuously arranging some sessions that can benefit us, all of us. Thank you once again.